Namaskar, very warm welcome to all our viewers and learners in this live phone-in session of CIET NCERT. I am Renu Bhatt and you are with us live on PM eVidya channels from channel number 6 to 12 and on our NCERT official YouTube channel. Dear learner, this is our special session of webinar where we talk about different aspects of ICT tools. Today is Friday and on every Friday we talk about cyber safety and security, and in this month of June we come up with a series on साइबर जागरूकता दिवस. हम इस पर ऑलरेडी 3 सेशंस कर चुके हैं. अगर आप उन सेशंस को दोबारा देखना चाहते हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर आवर यूट्यूब चैनल दैट इज NCERT ऑफिशियल. आप वहां पे इन सभी सेशंस को देख सकते हैं और हम चाहते हैं कि इन सेशंस के द्वारा आप अवेयर बने फाइनेंशियल क्राइम और साइबर फ्रॉड्स को लेकर के आपको क्या क्या प्रिवेंशंस लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव चीज़ें आपको करनी है, आप इस सेशंस के थ्रू देख सकते हैं. तो हम आपको बता देते हैं आज का टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम एंड इस टॉपिक पर विस्तार से जानकारी देने के लिए फॉर मोर डिटेल्स वी हैव आवर एक्सपर्ट्स विद अस. लेट्स मीट देम. यू आर श्री सिंकू सरन सिंह. आप डेप्यूटी कमांडेंट है I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से. वेरी वार्म वेलकम सर. थैंक यू रेणु मैम. और हमारे पास हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी हैं. यू आर डॉक्टर दीपक कुमार. यू आर सीनियर साइबर इंटेलिजेंस फ्रॉम I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वेरी वार्म वेलकम सर. Thank you, ma'am. And dear learner, it's time for you to participate in this session as this is our live phone-in session. You have to participate in this particular session through various mediums. You can connect to us, like you can call us, you can either drop a mail or you can drop a comment as well. आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पे जो है 8800440559. Either you can drop a mail at our email address that is cybersafety@ciet.nic.in. And in case you have joined us through our live streaming, that means you are on our NCERT official YouTube channel. Go to the live chat box and drop your comment out there. आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइम हुआ है या फिर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़े. और सर हम आपकी तरफ रुख करते हैं. दीपक सर, इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल क्राइम, हम देखते हैं कि पिछले 2 साल में हम बहुत डिजिटली लिटरेट हुए हैं और इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली करते हैं ऑनलाइन और ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल क्राइम और सम instruction, there must be some set of instruction that we have to follow while using online transaction. So what are those, sir? बिल्कुल. पहले तो thank you so much for inviting us here, and of course in our session we will cover about these information which is pertaining to the tips and tactics generally what exactly we need to prevent ourselves in financial things. कुछ टिप लाइंस हैं जो डूज में है, डोंट्स में भी हैं. हमने अपने इस पूरे सिनेरियो में मेंशन भी कर रखा है, बट कोशिश करेंगे कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलें उन पॉइंट्स को लेकर के, तभी यह समझ में आ पाएगा एग्जैक्टली कि हमें ऑनलाइन क्या सुविधाएं और क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हमें नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, UPI के थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं बेसिकली. Yes, sir. So shall we begin the session, sir? Sure. Sir. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Ministry of Education and NCERT for giving this opportunity to be here in this session. And this is the 4th session in this series. And in last 3 sessions, our speakers have covered the modus operandi of financial cyber frauds, and we will continue with that. But before that, I would like to inform you regarding our helpline number. The Indian Cybercrime Coordination Center has established a cybercrime helpline number 1930. Please remember this number 1930. This facilitates you in reporting any type of cybercrime, including the financial cyber crimes, to your state alias, state police. Whenever you face the financial cyber crime, आपका पैसा फ्रॉड से अगर आपसे लेते हैं तो 1930 पे कॉल करें और अपनी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, we have cybercrime.gov.in, National Cybercrime Reporting Portal, on which you can directly register your complaint, and the state alias, the police officials will act upon this.
This NCRP has integrated not only the state alias but also the banks, wallets, merchants, all other financial intermediaries to act on your complaint. The key is immediate action on any type of financial cyber crime, because we get a very little window before the fraudster withdraws the money from ATM or from APS or from any other POS system. So we have very little window, little time left to save the money, and that's why I request you to report immediately. When the fraud takes place, you report immediately on 1930 and or on NCRP portal, so that the police officials and bank officials can act on your complaint. When you call on 1930, please keep some essential details which is required for reporting of any type of financial cyber fraud, like your mobile number, your mail ID if you have, the bank name in which your account is having, and the account number, the transaction ID. The transaction ID UTR number, 12-digit number is there, which is essential for tracing out any type of transaction. That is very much important. So please keep it with you when you call on 1930, so that police officials can report your crime, register your crime and act on the cases. So this is an initiative from I4C for immediate reporting of cyber crime, financial cyber frauds, and to act on these cases. Now I would go on the modus operandi of financial frauds. First, I think in recent times, one of the most famous or most prominent financial fraud is scratch and win fraud. Earlier, what fraudsters were doing, that they are calling you and saying that, or messaging you on mail or through SMS that you have won so much of amount in lottery. But now they are sending courier to your homes. They send a scratch and win card, and when you get that card, you scratch and get the amount, that so much of amount you have won. तो जब आपको ये कार्ड मिलता है, आपको एक लेटर मिलता है, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं, आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल करना होगा, और फिर जब आप कॉल करते हैं तब वो कहते हैं कि ठीक है, आपका पैसा जो है मिल जाएगा, आपको इतने अमाउंट मिलेंगे, बट उसके पहले आपको फॉर प्रोसेसिंग फी आपको इतने पैसे जमा करने होंगे. सो मोडस ऑपरेंडी इज द सेम. पहले वो आपको मेल करते थे, आपको कॉल करते थे कि आपने ये लॉटरी जो है ये जीता है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, यू जस्ट गिव द प्रोसेसिंग अमाउंट. नाउ दे आर सेंडिंग इट टू यू थ्रू courier, and the rest of the modus operandi is same. The moment you deposit the amount in their account, they block your number. So please be aware of this type of scratch and win card. जब भी आपको ऐसा कोई कार्ड मिलता है तो कभी भी प्रोसेसिंग फी के नाम पे पैसे जमा ना करें. कोई भी आपको अपने आप ही आप कभी भी कोई लॉटरी और या इस तरह के अवार्ड बिना किसी अवार्ड के नहीं जीत सकते. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी लॉटरी को परचेज ही नहीं किया है, हमने कहीं कोई इस तरह का गेम खेला नहीं है, तो हमें अपने आप ही कैसे ये आ सकता है. और दूसरा ये कि अगर वो कहते हैं कि आप प्रोसेसिंग फी जमा कीजिए, तो आप वो मत जमा कीजिए. आप अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार ये जेन्युइन हो सकता है, तो आप जो बैंक अकाउंट आपको दिया गया है उस ब्रांच में जाइए और पता कीजिए. वहाँ पे पहले पता कीजिए कि ये जेन्युइन अकाउंट है भी या
नहीं है. So next fraud is cybercrime through profile pic. अभी हम सभी लोगों की आदत है, we generally what we do, we keep our DP changing and अच्छे DP लगाते हैं. तो फ्रॉडस्टर उस DP का इस्तेमाल करके वो अपने एक नंबर पे आपकी DP लगाता है और फिर आपके कॉन्टेक्ट्स में जो लोग होते हैं उनको ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है कि प्लीज आई एम हेयर, आई रिक्वायर्ड सम अर्जेंट मनी, सो प्लीज सेंड मी 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज. आपको लगता है यार ये मेरा फ्रेंड है, कहीं पे फंसा हुआ होगा, इसलिए उसने अचानक से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, एंड देन यू इमीडिएटली ट्रांसफर द मनी. नाउ ट्रांसफरिंग अमाउंट इज वेरी इजी. आप यूपीआई फट से कर देते हैं उस नंबर पे, जो भी नंबर आपको देगा. तो आप पेटीएम से, पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर देते हैं, फट से ट्रांसफर कर देते हैं. तो ये चीज़ें इसका फायदा फ्रॉडस्टर उठा रहे हैं. वो आपको ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि एकदम से इमीडिएटली अभी जरूरत है आपके किसी कलीग को, आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को, और वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है. आप देखेंगे, आप नंबर चेक नहीं करते, आप देखते हैं अगर डीपी तो उसी की है, फोटो उसी की लगी हुई है, और इमीडिएटली आप ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट. तो इस तरह की चीज़ों से भी बचना है. जब भी आपको ऐसा कोई रिक्वेस्ट आता है आपके किसी फ्रेंड से, तो पहले उसका नंबर चेक कीजिए कि ये उसी का नंबर है या नहीं है. आपके पास जो उसका मोबाइल नंबर होगा उससे चेक कर लीजिए. अगर वो मोबाइल नंबर चेंज है तो आप उसको कॉल करके और कंफर्म कर सकते हैं. उसका फ़ोन नहीं लगता है, उसके घर वालों को फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे है, कहीं बाहर तो नहीं है. तो आप पहले कभी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले इसको चेक बैक जरूर कर लें. नाउ सो ये इस तरह के केसेस अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हुए हैं, और हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें इस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में लोगों ने बताया है. लोगों के पैसे चले गए हैं, और फिर जब एक बार चले जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि हाँ अब हमें क्या करना है. Now the financial frauds by misusing platforms. Platforms means digital platforms. Any social media platform, Telegram, Facebook, using messengers. So there are many types of frauds. The fraudsters are using many ways to cheat you. Like they are sending tiny URLs, the links through SMS, and to watch some type of video, to give your comments on any video or any other links. So and the moment you click the link, some malware is installed in your mobile phones, and then they start extracting data from your mobile phone. Similarly, from Telegram, there are many groups, there are many links available on Telegram, through which you can watch movie, you can watch web series, and without thinking that this link can harm your system, can harm your mobile phone, can harm your desktop, you just click on the link. So please avoid clicking this link unless until it is from a authentic source, and stop clicking on link, especially through SMS. तो आपको बेसिकली जो भी इस तरह के लिंक्स आते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे लिंक्स होंगे, और आप अननोन नंबर से जो लिंक आते हैं उस पर भी आप क्लिक कर देते हैं. तो उन नंबर्स को, उन लिंक्स को क्लिक करने से बचना है, क्योंकि एक बार आपके मोबाइल में अगर कोई मॉलवेयर इंस्टॉल हो गया जो आपके डाटा को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपके जो भी पर्सनल डाटा हैं, जैसे आपका बैंकिंग डिटेल्स, आपके पासवर्ड्स, वो भी उनके पास जा सकते हैं. आई थिंक नेक्स्ट इज फेक सेल. दीपक विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. Deepak? Bilkul. So first of all, thank you. I mean, explaining all the modus operandi which you have mentioned on this slide on the presentation.
And further, when we move about the fake sales, like in presentation we have covered some sort of information. You can see like fake sale. What is happening here? The well-known platforms, generally you can see anything like Facebook, Twitter है या फिर Instagram, Tinder, anywhere, or OLX websites, Meesho and all. I'm not pointing any specific, the well-known platform generally which is there, people or you can say netizens जो internet use करते हैं, they are just trying to purchase something from these places, they're trying to get information from these places, or it could be group, it could be channels, it could be any community basically, or it could be any website. So what is happening there? They try to search some information and they found some information in very legit manner. Like in our last presentation, when you see the second one, which is talking about the Amazon, and we just see the UI. UI is basically user interface, and when we see the UI user interface as similar with the website, so we think like कि यह website actually उस प्लेटफॉर्म की है, फ्लिपकार्ट की है, अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म की है, एंड द अमाउंट और द कंटेंट जो भी गुड्स वहाँ पे सेल हो रहे हैं उसकी प्राइस काफ़ी कम रहते हैं, ऑलमोस्ट मतलब कि आप परचेज कर सकते हैं इजीली 200, 300, 1000. तो जब व्हेन यू परचेज दिस इंफॉर्मेशन, दिस गुड्स बेसिकली, बट यू डोंट चेक the URL. URL is basically the thing. So in presentation it's not visible actually, but it is a tiny URL, something like that, but it's not amazon.com or .in. So what is happening here? With the help of this kind of fake websites, fake platforms, they try to lure people, they try to ask, they try to convince to purchase these all information, or to do some sort of gather some information or purchase some goods in these prices. Similarly, what is happening here? People or these threat actor or threat campaigners, और basically जो इस तरह के गिरोह जो रन करते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हैं जो भी क्रिमिनल्स हैं, यह कमेंट भी खुद कर रहे हैं, लाइक दे आर मेंशनिंग कि यह कंटेंट मुझे मिला, मुझे काफ़ी कम पैसे मिला और थैंक यू फॉर द सर्विसेज. तो इससे जब लोग रीड करते हैं तो उन्हें लगता है कि यह काफ़ी जेन्युइन है. वो ये नहीं देख पाते एग्जैक्टली कि दिस इंफॉर्मेशन मे बी, दिस रिस्पॉन्स मे बी filled by some sort of their team, it could be any paid one. And similarly, when we talk about some new, which is of course we have covered 2-3 in our last 3 series about some sort of emerging cyber crimes as well financial frauds, but something which is pending. So in this series we just want to cover. So first one is like about the credential manipulations fraud. So what is happening here, like sometimes when you think कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमें कुछ परचेज करना होता है, हम कहीं किसी के फीडबैक के बारे में चेक कर रहे होते हैं, या हम कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम यूजुअली सर्च इंजन में जाकर के वो सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती भी हैं, and when we check about those information, it shows about a suggest edit, and sometime we can give, or user or any person can give their own number. Usually suggest edit जैसे ऑप्शंस में इसका मिसयूज करके कोई फेक नंबर भी डाल सकता है. यह चीज़ें जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो जो दूसरा व्यक्ति होता है जो इस चीज़ को देखता है, ही और शी थिंक लाइक इट्स अ जेन्युइन, and simply they make a call. So suppose I am in Delhi, I am trying to search something in Coimbatore, I found some information about the Coimbatore, so मैं Coimbatore अभी नहीं जा सकता, so मैं उस सर्च इंजन के माध्यम, उस नंबर के माध्यम से ही अपने आप को चेक करता हूँ. यूजुअली होता क्या है ऐसे सिचुएशन में, मैक्सिमम एज एन एवरेज देखा गया है कि ये नंबर्स मैक्सिमम फेक्स होते हैं, और फेक नंबर पे कॉल करने से काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जिसपे हमने लास्ट में कस्टमर केयर रिलेटेड सर्च इंजन्स में लोग जब सर्च करते हैं या कोई टिकट बुक करते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब वह चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है तो पहला ऑप्शन होता है कि सर्च इंजन में जा करके, गूगल हो या बिंग हो, किसी में भी, देन दे सर्च दिस इंफॉर्मेशन, और जो टॉप इंफॉर्मेशन आते हैं यूजली वो उस पर ही कॉल करते हैं. हम सीरीज में इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत ट्रेंडिंग फ्रॉड है, और जानकारी न होने के कारण, अवेयरनेस न होने के कारण आज भी इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट लिटरेट, इवन इलिटरेट पीपल, इलिटरेट हो या कोई भी टॉप शॉट हो, इवन दो दे आर ड्यूपिंग इन दिस काइंड ऑफ search engines frauds basically where they are searching this information. Now moving ahead, second is, next one is about the referral frauds. आपने काफी सुना होगा पॉन्जी स्कीम्स, MLM इन्वेस्टमेंट में लोग फ्रेंड्स या दोस्त या कोई दोस्त या अंकल, कोई मतलब कहीं ना कहीं रिलेटिव्स या कहीं ना कहीं लोग ऐसे कोई ना कोई शिकार हो गया होता है ऐसे क्राइम्स को लेकर के, जहां पर सोशल मीडिया का मिसयूज करके, जैसे प्रेजेंटेशन में जैसे दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम दे ट्राई टू पोस्ट सम इंफॉर्मेशन, एंड यूजुअली
देयर दे कैन पोस्ट सम इंफॉर्मेशन विच इज टॉकिंग टू यूज दिस प्लेस। जैसे उन्होंने कहा कि इस पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इस पे आप परचेजिंग कीजिए या इसको रेफर कीजिए तो आपको कुछ बोनस मिलेंगे, या फिर इस चीज को परचेज करने में आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो सिमिलरली लोग परचेज भी करते हैं। तो स्टार्टिंगली वह चीज काम करती है, पर यूजुअली होता क्या है कि इस प्लेटफॉर्म की कोई जेन्युइनिटी ना होने के कारण हम रैंडमली कहीं पे पेमेंट करके परचेजिंग करने की कोशिश करते हैं, और अक्सर होता है क्या कि हमें वो चीज मिल नहीं पाती है। एग्जाम्पल में सपोज करिए कि कोई वॉच है या शूज है या कोई भी ऐसा आइटम है जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे या फिर टेलीग्राम में किसी फेसबुक या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेल है। हम यह देखते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस सही है, वो प्राइस कम है, हम परचेज करते हैं, और ना मिलने पे हम बेसिकली रिपोर्ट कर देते हैं वेबसाइट साइबर क्राइम पोर्टल पे। पर यूजुअली होता है क्या कि हमारे 100 रुपए हो या 200 रुपए में कोई भी अमाउंट हो बेसिकली वो चला जाता है। पर जब आप इसकी ग्रेविटी समझते हैं मल्टीपल लोगों में, तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया में कि अगर कोई व्यक्ति किसी कैंपेन को रन करता है तो अगर उसमें 100-200 लाख लोग भी फंस जाते हैं तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वेयर इट गोज टू रॉन्ग प्लेटफॉर्म। एंड सिमिलरली it's not only the things, sometimes it is on well known professional websites, even you saw in LinkedIn जैसे professional places में या कोई भी job portal में भी they try to convince that कि yes it is a very good platform. So method is almost same, the thing is what they want to convince you through any platform. It doesn't mean that they will go with only WhatsApp or these kind of things. It could be from any platform. They may also mail you, they may also initiate you. हमने कुछ ऐसे देखे हैं क्राइम, जैसे क्रिप्टो रिलेटेड हो गया, आपका गिव अवे स्कैम्स हो गया। हालांकि हमने काफ़ी केस ऐसे देखे हैं जहां पर यूजर्स को नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ों में उन्हें ट्रांजेक्शंस करने हैं या किस कॉइन को परचेज करना है, कहाँ पे उन्हें चीज़ें मेंटेन करनी है। यूजुअली ऐसे क्राइम्स भी देखने को मिले हैं जहां पर क्रिमिनल्स और गैंग्स और जो ये बेसिकली जो कार्टेल है कह सकते हैं, ये खुद आपको कहेंगे कि हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे, आपका यूजर अकाउंट क्रिएट कर देंगे और आपके लिए हम $1 या $2 समथिंग रुपीज हम पे भी कर देंगे ताकि आप अपना सर्विस को रन कर सकें। तो आप सोचते हैं कि कोई चीज फ्री में है तो वी कैन स्टार्ट, एंड यूजुअली पीपल जो भी व्यक्ति है वो अपना 100 रुपए, 200, 1000, 10,000, 1 लाख जितनी उसकी सिचुएशंस होती है उस हिसाब से वो अपना पेमेंट कनेक्ट करता है उस प्लेटफॉर्म में और कोशिश करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब इन्वेस्टमेंट में उसको अच्छे रिटर्न्स मिलने लगते हैं तो उसे लगता है चीजें सही हैं। इसके बाद उसको रेफरल के लिए भी कहा जाता है, रेफरल में भी उसे बोनस मिलता है। तो स्टार्टिंग में जैसे ये कोई स्कीम चलती है उस तरह से स्कीम ठीक चल रही होती है, पर जो बाद में जुड़ने वाले व्यक्ति होते हैं यही व्यक्ति जब पुराना हो जाता है, जब ज्यादा पैसे दे चुका होता है, उस केस में जब वो विड्रॉ करने के लिए जाता है तो उस समय काफी सिचुएशंस होती है जहां पे केवाईसी सही नहीं है या अकाउंट आपको ब्लॉक कर देंगे या विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इन चीजों में काफी स्कैम्स और काफी फ्रॉड्स हुए हैं जहां पे इस तरह के गिव अवे स्कैम्स और क्रिप्टो पर्सपेक्टिव चीजें देखने को मिली हैं। सिमिलरली promo code perspective, you see various channels are there. I'm telling you, it's not about things, it's about the awareness. Legitimate platform का misuse करके भी चीजें की जाती है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। कमेंट्स भी अच्छे किए जाते हैं, कमेंट्स भी प्रॉपर्ली लिखा रहता है कि यस मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिला, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी करेंगे। इंग्लिश भी प्रॉपर्ली रहती है, तो इट्स अ फेक, इट्स मे बी फेक, इट कुड बी एनीथिंग, इट्स अ नैरेटिव। सो अंडरस्टैंडिंग of this platform, understanding of this situation, that is different thing. And now next is about the classic bot attacks. हम लोग classic bot attacks की बात करते हैं तो हमने काफी कुछ देखा है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके फाइनेंशियल क्राइम को बढ़ावा देना, जहां पर हमने एग्जांपल दें, जैसे हम AI बॉट्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स की बात करते हैं, या फिर आप कह लीजिए सिंपल तरीके से बात करते हैं कि कोई SMS आपको मिलता है, SMS में लोग शॉर्टनिंग URL बेसिकली कोई URL जो है, जैसे कोई एड्रेस होता है www.something.com/something, it's a very big URL. So if you send this URL through SMS or through WhatsApp, so it will take काफी स्पेस और काफी टेक्स्ट हैवी रहेगा, तो एक लिमिट होती है। तो शॉर्टकट जैसे बिटली, कटली, कैसे काफी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपने बड़े URL को शॉर्ट कर सकते हैं और SMS में भेज सकते हैं। इसमें आपका URL छिप जाता है, एग्जैक्ट URL दिख नहीं पाता ताकि यूजर समझ ना सके। सो यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दीज क्रिमिनल्स एज वेल यूजिंग दिस शॉर्ट URLs एंड दे ट्राई टू से कि आपका KYC नहीं हुआ है, या आपका KYC हो गया है, या फिर आपके रिटर्न्स इतने हैं, या फिर आपने जो ITR भरा था उसका आपको इतना मिला है, या फिर आपने अभी जो मूवी देखी थी उसकी फोटोज ये हैं। मतलब इट कुड बी एनी नैरेटिव। द थिंग इज व्हाट SMS, द थिंग इज व्हाट द फिशिंग URL।
सो ये फिशिंग URL होती है जो बेसिकली इस पर क्लिक करने के बाद जैसा बताया गया कि ये मैलवेयर कंटेंट की रहती हैं, यह वेबसाइट हूबहू दिखने वाली हो सकती हैं, यह वेबसाइट क्या पता गूगल फॉर्म के माध्यम से या गूगल के माध्यम से कुछ कलेक्शन करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो कोई भी क्राइम इंस्टेंट आपको लूट नहीं सकता, क्या पता वह डेटा लेकर के फ्यूचर में आपको अटैक करने के लिए, फ्यूचर में क्राइम इनिशिएट करने के लिए की जा रही हो। इट्स कुड बी एनीथिंग। सो दिस इज वन। थर्ड वाला जो इमेज दिख रहा है आपको, बेसिकली होता क्या है कि हम अक्सर फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार के जरूरी नहीं कि कोई उससे डायरेक्ट लिंकेजेस हो। समटाइम व्हाट इज हैपनिंग, हम कोई चीज सर्च करते हैं ऑनलाइन, मूवी सर्च करते हैं या कोई कंटेंट सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं या कोई स्कीम सर्च करते हैं। सो हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं, या हम वीडियो की बात कर रहे हैं, हमें कोई वीडियो चेक करना है तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए भी कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं। तो सर्च इंजन में जाकर के जब हम सर्च करते हैं कुछ वेबसाइट्स खुलती हैं, वेबसाइट खुलने के बाद वो पूछता है प्लीज डाउनलोड, अलाउ समथिंग, अलाउ करने के बाद कोई रैंडम एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता और हम उसको अक्सर क्लिक करके इंस्टॉल भी कर लेते हैं। और वो एप्लीकेशन क्या पता कोई वीडियो प्लेयर हो, क्या पता कोई रैंडम एप्लीकेशन हो। इन एप्लीकेशन पे अक्सर देखा गया है कि ये एप्लीकेशन मैलिशियस होती हैं और आपके माध्यम से, परमिशन के माध्यम से आपका डेटा ज़्यादा तो नहीं, कॉन्टैक्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो लेने की कोशिश करते हैं और वो लेके चले जाते हैं। जब आप देखते हैं एप्लीकेशन सही नहीं होती है, आप इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, बट अनइंस्टॉल करने से होता कुछ नहीं है। जिस टाइम तक आपका एप्लीकेशन या मोबाइल पे इंस्टॉल रहता है तब तक वो डेटा आपका चला जा चुका होता है कॉन्टैक्ट को लेकर के। और इट्स वेरी इजी टू टारगेट यू। आपकी पब्लिक प्रोफाइल फेसबुक हो, टिंडर हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, कहीं पे भी या दोस्त के यहाँ पे कहीं पे भी, व्हेन दे कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन दे ट्राई टू ल्यूर। तो जो पहला एक मोडस ऑपरेंडी बताया गया कि व्हाट्सएप की डीपी चेंज करके किसी से पैसे मांगने की कोशिश करना एक टाइम में, तो ऐसे भी क्राइम्स काफ़ी होते हैं। तो लिंकेजेस यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं जो बॉट पर्सपेक्टिव चीज़ें, जैसे हम नोटिस करते हैं कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में अक्सर ऐसे बॉट्स और व्हाट्सएप पे भी ऐसे बॉट्स यूज़ किए जाते हैं जो कहीं तो सही होते हैं पर कुछ मिसयूज भी किए जाते हैं। तो कभी ना कभी ऐसी चीज़ें, बॉट मतलब एक कह लीजिए कि कंप्यूटर है पीछे जो जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जा रखा है, वो आपके दिए हुए कमांड के अनुसार आपको हेल्प करता है। जैसे आप 1 टाइप करते हैं गिव द, कि आपको क्या हेल्प चाहिए, आप लिखते हैं कि उसमें मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, देन इट विल गिव सम इंफॉर्मेशन। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर मिसयूज्ड बाय द क्रिमिनल्स। अब जब बात करते हैं कि टिप्स को लेकर के, तो एक्चुअली हमारा हैंडल भी है एक साइबर दोस्त करके, दैट इज ट्विटर पे आप चेक कर सकते हैं। साइबर दोस्त काफ़ी अवेयरनेस टिप्स भी हैं, इस तरह से काफ़ी और भी यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी साइबर अवेयरनेस जैसे टिप लाइन अवेलेबल है। कुछ टिप्स हमने मेंशन किए हैं, जैसे पहला जो है दैट इज अबाउट द ATM एक्सचेंज। ATM को लेकर के अक्सर यह देखा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कभी कभी होता है क्या कि यूजर कोई क्रिमिनल आकर के बोलता है सर मैडम मैं आपकी हेल्प करता हूँ पैसे निकालने में, या कभी तो ATM एक्सचेंज करके काफ़ी पैसे निकाल लिए जाते हैं इंस्टेंटली, ना निकाल करके कभी कभी वह ATM को यूज़ करके दूसरे प्लेस में मिसयूज़ करता है OTP के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ATM एक्सचेंज जैसी चीज़ें काफ़ी सुनने को मिली हैं। तो यह भी एक है कि अपना ATM खुद अपने पास रख के अपने मैनर से, अपने तरीके से उसको यूज़ करें, पैसे निकालें। दूसरा, कस्टमर केयर को लेकर के, कस्टमर केयर एक इतना कॉमन प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आजकल हर व्यक्ति की बात की जाए तो अक्सर शहरीकरण में देखा गया है कि लोग थोड़े जागरूक होते हैं, परंतु वहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। परंतु जो थोड़े से रूरल एरियाज हैं उनको जब ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि हाँ हमें भी ऑनलाइन चीज़ें मिल सकती हैं, हमारे यहाँ भी डिलीवरी, अमेजोन, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, मीशो आ सकती है, तो ट्राई टू सर्च सपोर्ट ऑनलाइन कस्टमर केयर समथिंग करके। तो यह फ्रॉड बड़ा कॉमन है, आज भी चल रहा है। नंबर चलते हैं, कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, नए नंबर्स आते हैं, और यह किसी भी के साथ कभी भी हो सकता है। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि हम जब भी नंबर सर्च करते हैं तो कोशिश कीजिए उस प्लेटफॉर्म पे जाएं जो वेबसाइट, जैसे मान लीजिए जोमेटो है, जोमेटो की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सपोर्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप हेल्प पे जाकर के चेक कर सकते हैं, रैदर सर्चिंग समथिंग ऑनलाइन। तो जो बड़े प्लेटफॉर्म है SBI, तो दे हैव देयर ओन टोल फ्री नंबर 1800 करके। तो सिमिलरली ऐसे जो बड़े होते हैं उनके खुद के टॉप सर्च इंजन्स में इट विल पॉपुलेट, बट यूजुअली समटाइम्स इट्स नॉट देयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द सेम थिंग। ATM एक्सचेंज हो गया, ई-कॉमर्स फ्रॉड। ई-कॉमर्स को लेकर हमने लास्ट सीरीज में काफी कवर किया है कि कमर्शियल, क्योंकि हर साइबर क्राइम पे जो मेन 60% से ज्यादा जो पॉइंट है वो फाइनेंशियल से लिंकेज है। तो कहीं ना कहीं पैसा, फाइनेंस ही लिंक होता है, इसे पैसे लूटने के लिए, डेटा लेने के लिए कोशिश करते हैं, रेवेंज एंड ऑल दीज ऑल द सेपरेट थिंग। तो जब हम वेरीफाई करने की बात करते हैं कि ई-कॉमर्स में भी बचने के लिए डू एंड डोंट्स काफी हैं, पर समझिए कि कोई भी वेबसाइट अगर कोई ऑफर दे रही होती है, वेबसाइट को प्रॉपर्ली चेक कीजिए, वो रेड फ्लैग्स हैं दैट वी विल कवर, बट
initially we need to verify various things. Trust is okay, but verification is again a subject for the same thing. Customer reviews, उस प्लेटफॉर्म पे शायद आपको रिव्यू सही मिले, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये रिव्यू सही है कि नहीं. यूजुअली क्या होता है कि अक्सर जब भी कोई लोग लुटते हैं या फिर किसी का पैसा चला जाता है, तो ऑनलाइन काफ़ी पोर्टल्स हैं जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, पब्लिक प्लेस जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट या कुछ और है, तो नॉर्मली यूजर जाके वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं. मतलब दे रिपोर्ट देयर कंप्लेंट ऑन पब्लिक प्रोफाइल कि मैं ऐसा लूटा, और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लीव कर देते हैं, अपना नंबर, अपनी बैंक डिटेल, हर चीज़. तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट पे जाकर के दे गॉट योर नंबर, दे मेक अ कॉल एंड दे से दैट कि हेलो सर मैडम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस एंड वुड यू लाइक टू टेल मी लाइक व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली with your case, and we got to know that कि आपका, तो they will create a story and they will talk in a very precise and very clear and very good manner, like जैसे कस्टमर केयर्स में बात होती हैं. एंड यूजुअली पीपल थिंक कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है, एंड दे विल स्टार्ट देयर नैरेटिव. वो कभी लिंक भेजेंगे, कभी एप्लीकेशन भेजेंगे, कभी एनीडेस्क जैसी चीज़ें ट्रू कॉलर करके इंस्टॉल करवाएंगे. मतलब यूजुअली पीपल समझ नहीं पाएगा. तो जो समझदार है उसे समझना है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है. तो अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोशिश कीजिए कि चीज़ें ना करें. सिमिलरली व्हेन यू मूविंग अबाउट पोस्टिंग ग्रीवेंस, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी, सेम है, इसमें भी काफ़ी क्राइम्स हुए हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द हैकिंग ऑफ क्रेडेंशियल्स फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स. हैकिंग क्रेडेंशियल, ओटीपी जैसे आप समझिए, ओटीपी कभी कभी हमारे फ़ोन में भी आता है और हमारे ईमेल पे भी आता है. तो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर ईमेल एक्सेस उसको मिल रखा है आपके क्रेडेंशियल का, और अगर वो ईमेल के माध्यम से किसी चीज़ में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा. तो यूजुअली सम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इन सम ऑफ द केसेस, if your phone is hijacked, so hacker or criminal can take information from the phone directly. means अगर आपके फोन पे OTP आता है तो उसको मिल जाए, क्योंकि आपका फोन ऑलरेडी हाईजैक्ड हो रखा है, आपका फोन ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो रखा है बिकॉज दोस फेक एप्लीकेशन. थर्ड, एप्लीकेशन मतलब फोन में आप एप्स अपडेट नहीं करते हैं, आपका फोन का जो एंड्रॉयड या iOS है वो पुराना वर्जन है, तो जो इसमें खामियां होती हैं, इस खामियां का मिसयूज करके हैकर्स कोशिश करते हैं कि आपके फोन से आपके डेटा या आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए. तो OTP का कंसर्न जो, अगर वो OTP अगर आपके व्हाट्सएप के आपके SMS के अलावा ईमेल पे भी आ रहा है, तो इफ दे हैव एक्सेस ऑफ योर ईमेल देन सिंपली दे कैन डू एनीथिंग, एंड दैट इज द वन डिफरेंट कंसर्न. एंड मूविंग अहेड वी डू हैव द सेकंड वन इज कॉल्ड पासवर्ड. पासवर्ड को लेकर के अक्सर यह ध्यान दीजिए कि पासवर्ड हम जो यूज करते हैं, अक्सर देखा गया कि पासवर्ड हम सेम यूज करते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपका जीमेल का हो, चाहे वो ईमेल या कोई भी याहू, फेसबुक, वेयरएवर, या कुछ सिमिलरिटीज रहती है नॉर्मली. तो अक्सर होता है क्या कि कभी कभी किसी को अगर आपकी एक ईमेल आईडी की पासवर्ड मिल जाती है, उस पर OTP आते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, वही क्रेडेंशियल वो किसी और प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकता है. So sometimes it's very important to know exactly what emails are coming and what is the password generally which you create. Password should not be like, admin @123 12345. It should not be password. It should not be password 123 or Deepak @something. It could be something which contains alphanumeric, एक लेंथी होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए जो आपको याद रह सके, या आप ऐसी जगह पे लिखो जो सिर्फ आपको ही पता हो. पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पासवर्ड अगर मान लो कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. इट कुड बी 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पर अगर आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो एटलीस्ट आपके पास जब OTP आता है, आपने बैंक में देखा होगा कि आपके पासवर्ड डालने के बाद भी एक OTP के कारण आप तभी ऑथराइज हो पाते हो उस प्लेटफॉर्म पे. तो कोशिश कीजिए कि चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसको सर्च कीजिए कि क्या वेदर दे डू हैव 2FA और नॉट. दैट इज द सिचुएशन. हमने कुछ रेड फ्लैग्स क्रिएट किए हैं जहां पर यह समझना जरूरी है कि वो क्या पॉइंटर्स हैं जहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें यह लगे कि हाँ ये वेबसाइट या सर्विस फेक हो सकती है. जैसे अमूमन देखा गया है कि एज एन एवरेज सिचुएशन में कि कोई भी वेबसाइट होती है, उसका प्रॉपर एक यूजर इंटरफेस होता है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, प्रिवेसी होती है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उनका पूरा डिटेल एड्रेस लिखा रहता है. अक्सर वेबसाइट में देखा गया कि जो ऐसी फेक वेबसाइट्स होती हैं उनके डिटेल्स, उनके टेम्पलेट्स काफ़ी पुअरली डिज़ाइन होते हैं. पुअरली कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अलाइनमेंट होती है प्रॉपरली नहीं हो सकती. शायद हम कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं, वो वेबसाइट काफ़ी एरर्स प्रोवाइड कर रही है, तो समटाइम्स दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. दूसरा, अक्सर ये देखा गया है कि जो लॉक साइन होता है, जो आपकी सर्टिफिकेट यानी वेबसाइट की HTTPS को दर्शाता है,
यह भी देखा गया कि आजकल हैकर्स क्रिमिनल्स फेक वेबसाइट क्रिएट करके HTTPS जैसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। HTTPS सिर्फ आपको यह बताता है कि आपका जो डेटा है उस वेबसाइट के माध्यम से जब आप टाइप करते हैं, डालते हैं, एंट्री करते हैं, तो सर्वर पे इंक्रिप्टेड मैनर में जाता है। दैट इज द एश्योरिटी कि इन बिटवीन MITM कैन नॉट बी हैपन, मतलब चांसेस बहुत कम है। वो ये नहीं बताते कि HTTPS होने से वेबसाइट बिल्कुल मतलब रियल है या लेजिट है। तो ये ध्यान दीजिए कि फेक वेबसाइट से भी लोग इस तरह का यूज कर रहे हैं, पर हमें तब भी यह देखना है कि HTTPS है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन डिटेल की बात की जाती है तो ये कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जहां पर कुछ वेबसाइट पर वो डिटेल छोड़ते हैं, जैसे वेबसाइट का ऑनर कौन है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट किस सर्विस को प्रोवाइड करती है, मतलब क्लैरिटी होती है उस सर्विस को देखने के लिए। वर्क डिटेल को लेकर के रिव्यूज को देखते हुए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होना, उस पर प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ डेवलपर, जैसे मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं, अपने अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइए तो आप हमेशा चेक कीजिए कि डेवलपर अकाउंट जो डेवलपर होता है उसमें एक सिंपल भाषा में आप इजीली चेक कर सकते हैं, रिव्यूज चेक कर सकते हैं। तो डेवलपर में भी अगर जैसे मान लीजिए कोई वेल नोन है, व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप की प्रॉपरली ईमेल आईडी होती है। कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, दे हैव प्रॉपर ईमेल आईडी ऑफ सपोर्ट, but usually these fake applications they don't have a proper email ID, they have some random Outlook, random Gmail, random something like that. So it is also important to check the contact details of these information. कभी कभी होता है क्या है कि किसी सर्विस के बारे में चेक करने के लिए आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं पब्लिकली उसके रिव्यूज कि एक्चुअली है क्या। तो मे भी एक वेबसाइट पे आपको पूरे पॉजिटिव फीडबैक मिले, बट क्या पता काफी और वेबसाइट्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यू मे गेट अ नेगेटिव और मे बी सम सस्पिशियस फीडबैक। सो दैट इज द एश्योरिटी टू नो एक्जैक्टली वेदर यू शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म और नॉट। सिमिलरली नो एक्टिव सोशल मीडिया, आपने नोटिस किया है कि हर वेबसाइट के आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उनकी अवेलेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए मीशो की बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, फेसबुक की, सो दे हैविंग अकाउंट्स इन इंस्टाग्राम, दे हैविंग अकाउंट इन ट्विटर, इवन दोस पेजेस एज वेल। बट ऐसी कोई सर्विस अगर मार्केट में नहीं आई है, काफी वेल नोन और काफी प्रोडक्टिव है, इफ दे आर नॉट अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, इट्स मीन दैट देयर इज समथिंग फिशी। सो यू शुड आल्सो क्रॉस चेक ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति अगर फेसबुक पे नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, दे कैन ट्राई ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दैट इज द some pointers for the same thing and very important about the last one and what is happening here कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी पैसे वाली जब चीजें होती हैं तो अक्सर वो ल्यूक्रेटिव प्लान्स की डिस्कशन करते हैं, जहां पे आपको पैसे को लेकर काफी ज्यादा इंस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है या फिर अच्छी अर्निंग हो सकती है रेफरल करने के लिए। तो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो द सिचुएशन विच इज देयर। सो लास्ट व्हाट इज इट इज नॉट about the things we have mentioned, some sort of do and don'ts which is talking about like what is required and what is not required, what things we have to maintain while operating or while we purchasing something on online or offline basically। जरूरी नहीं कि हर चीज ऑनलाइन साइबर क्राइम के शिकार हो, ऑफलाइन भी साइबर क्राइम के लोग शिकार होते हैं परचेज करने में। जैसे पहला आपका है कि सिक्योर पासवर्ड्स एंड पिन डिटेल्स। अक्सर होता है क्या है कि हम पासवर्ड्स शेयर कर देते हैं, दैट इज ओके, बट ट्राई टू शेयर ओनली विद दोस्त जो ट्रस्टवर्थी है, जो बेसिकली आपका ही काम आपके सामने या कुछ ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली ही और शी कैन मिसयूज दोज थिंग्स। डू बी ऑब्जर्वेंट व्हेन विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATMs। अक्सर आप अगर पैसे निकालने की बात कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, देखिए सामने जो व्यक्ति पैसा निकाल आपके सामने निकाल रहा हो या कोई पैसे लेन देन ATM के माध्यम से हो रहा है तो आप फिजिकली उस चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटर कीजिए। नेवर नो कि आपने 2 मिनट आपको किसी बात में उलझाए रखा एंड सिंपली व्हाट इज हैपनिंग कि वो आपका ATM चेंज करके भाग गया और ही मे मिसयूज दोस थिंग्स फॉर द सेम पर्सपेक्टिव। डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉम सेफ एंड रेप्यूटेड वेबसाइट। जैसे हम बात करते हैं वेबसाइट्स को लेकर के तो हमें पता नहीं होता वेबसाइट सेफ है कि नहीं है। यूजुअली तो हम गूगल पे टाइप करके सर्च करते हैं कि SBI वेबसाइट, कोटक महिंद्रा बैंक, XYZ वेबसाइट। रादर कोई अगर डायरेक्टली SBI.com लिख देता है या ऐसी कोई वेबसाइट तो जरूरी नहीं कि वेबसाइट सही हो। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर इट इज इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, प्लीज सर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, मेनी टाइम्स हम क्या देखते हैं, हमने टाइप किया SBI ऑनलाइन SBI, उसकी बजाय हम सीधा SBI बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टाइप कर देते हैं गूगल सर्च में। फिर हमें वो गूगल पे एक साइट दिखती है जिसपे लिखा हुआ है ऑनलाइन SBI.com, बट उसमें ऑनलाइन का ई जो है वो स्लाइटली चेंज है। बिल्कुल, ये ध्यान देना है हमेशा कि जो एक्चुअल वेबसाइट है वो उसका एक वर्ड हमें, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिस प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं वहां पे
उस वेबसाइट के को अच्छी तरह से चेक कीजिए, पढ़िए कि वो क्या है। अभी रिसेंटली जैसे cybercrime.gov.in, GOV के ओ को आप 0 से रिप्लेस कर दीजिए तो वो भी एक फेक वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से एक वर्ड को स्लाइटली चेंज करके आपके कीबोर्ड पे जब आप ए को प्रेस करेंगे ज़्यादा टाइम तक तो एक अलग तरह का ए आएगा। तो आप देखिए कि जो वेबसाइट है उसमें कोई अलग तरह का डिजिट तो अल्फ़ाबेट तो नहीं है। अगर वो उस तरह का है तो वो फेक हो सकता है। काइंडली जब भी आप वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी बैंक के वेबसाइट पे, किसी वॉलेट के वेबसाइट पे जा रहे हैं तो ये जरूर चेक करें। बिल्कुल। सो ये चीज़ मेल से भी आ सकती है। मेल पे भी जब आप देखते होंगे, मेल पे लिखा रहता है कि आपका इतना पेमेंट करना है या ये आपका ये है, और उस पर जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो कुछ और खुलती है। तो जैसा बताया cybercrime.gov.in, इट कुड बी एनीथिंग। तो GOV में 0 को बना सकता है, इन में I को इट कैन बी, साइबर क्राइम में डबल E कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली साइबर क्राइम, इट कुड बी एनी डोमेन स्क्वैटिंग थिंग्स जो सिमिलर हूबहू दिखता है। फेसबुक है तो यू कैन सी, सो दिस इज द सिचुएशन। ये तो हो गई URL की बात, बट नीचे जो यूजर इंटरफेस है वो भी कभी कभी बिल्कुल सेम होती है। सो नाउ डोंट्स में भी कुछ चीजें मेंशन है जो आप देख सकते हैं। दैट इज कि डोंट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू अ फोन। कभी भी इंस्टेंटली घबराइए मत कि आपको तुरंत पे, क्योंकि इट्स अ माइंडसेट मैनिपुलेशन। आप जॉब में हैं, आप काम कर रहे हैं, इमीडिएटली सडनली फोन आया कि सर आपका जो पैसा था उसमें आपको ये मिलना है, आपका KYC बंद हो जाएगा। आपने नहीं किया तो आपको 800 रुपए पे करने पड़ेंगे। एंड द रैंडम फिगर, व्हाई 800 ओनली? So they will create situation like this, it will look like a genuine things. So no need to instantly कि आप परेशान होइए, immediately confirm कीजिए, बैंक जाए confirm कीजिए, take a time. It's not like कि कोई आपकी सर्विस को तुरंत बंद कर देगा। Similarly, we have some other things. Do not download anything from random place. Don't store card numbers on websites. Usually लोग card numbers भी remember me कर देते हैं, save कर देते हैं। अक्सर उन्हें आप चेक कीजिए वेबसाइट लेजिट है कि नहीं। डो नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। SMS पे लोग क्लिक कर देते हैं, कुछ और खुल जाता है मोबाइल पे। मोबाइल काफ़ी हैंडी होता है और हमें पता नहीं होता है। और डोंट बाउंस टू क्विकली ऑन ऑनलाइन डील्स। डील्स को लेकर अक्सर लोग जल्दी लूर हो जाते हैं और चले जाते हैं। अवॉइड चेक फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं जहाँ पर लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। And the last is very important about the financial perspective. I would like to say, sir, ki please put some attention on this one. What is? Again, same thing. I would like to repeat that in case of any cyber crime, please call on helpline number 1930. It is a national cyber crime helpline number available in every states and UTs of India. तो आपको 1930 पे कॉल करके और अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है। इट इज फॉर यू ओनली। आप जितनी जल्दी, स्पेशली इन फाइनेंशियल साइबर क्राइम केसेस, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको आपके पैसे ज़्यादा बचने के चांस होंगे। तो 1930 पे कॉल करें और अगर कॉल नहीं जा रहा है, कई बार होता है नेटवर्क कंजेशन की वजह से कॉल नहीं लग रहा है, तो इमीडिएटली www.cybercrime.gov.in पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर करें। आपको ये 1930 स्टेट पुलिस के द्वारा मैन किया जाता है। आप अपनी सारी कंप्लेन आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन वो आप उससे शेयर कर सकते हैं, नो इशू। So last I would like to add one important thing, because साइबर क्राइम में ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना जागरूक रहेंगे उतना ही हम लोगों को अवेयर करेंगे। और हम यह नहीं कह सकते कि यह प्लेटफॉर्म सही है या यह प्लेटफॉर्म खराब है या यह चीज़ सही नहीं हो रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी अवेयर and try to aware other people through any medium. And I would say request to all the states as well, like those who are listening this, they can कंटिन्यू इन देयर लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में भी आप इस चीज़ को बढ़ाते रहिए ताकि इस चीज़ को लोग ज़्यादा समझ सकें और इन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रैप ना हो। सो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। राइट, वेरी राइटली सेड सर। और हम देखते हैं अपने आसपास कि चाहे लोग जितने पढ़े लिखे हों, लिटरेट हों, वेदर वो डिजिटली लिटरेट हैं या नहीं, कुछ ना कहीं वो इस तरह के फ्रॉड में, उस स्कैम्स में फंस ही जाते हैं। और जैसे सर ने बताया, आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी है जो बहुत नेसेसरी है व्हाइल यू आर डूइंग ऑनलाइन थिंग्स फिनेंशियली। सर यहाँ पे हम एक सवाल लेना चाहेंगे अपने व्यूअर का। वो संतु दास हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं UPI ट्रांजेक्शन्स के बारे में, लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, क्या ये सेफ हैं या नहीं? सर बिल्कुल, देखिए
कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है पैसे लेने के लिए, देने के लिए, पहले आप जानिए। तो आप कोई चीज़ परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने पे QR कोड्स आते हैं, लोग स्कैन कर देते हैं। अब UPI के लिए अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कोई पेमेंट करने के लिए, तो पहले वैलिडेट करिए। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम पेटीएम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेटीएम जब नंबर डालते हैं देन वी हैव अ थिंग्स क्यों सामने आता है। तो सपोज करिए कोई नंबर डाला आपने और सामने आया कि हाँ अग्रवाल स्वीट स्टोर, तो एटलीस्ट इट शोज दैट कि दैट नंबर इज लिंक विद अग्रवाल स्वीट स्टोर। तो यह होता है वेरिफिकेशन करने की चीजें, तो दैट इज वन। बट रैंडम चीजों में साइबर क्राइम में हो क्या रहा है कि लोग बोलते हैं इस पर ट्रांजेक्शन कर दीजिए, जब आप चेक करते हैं वो उस व्यक्ति का ना होकर के किसी और का होता है, तो दैट इज सेकेंडरी मीडियम। तो प्लेटफॉर्म सही है, पर यह आपको आइडेंटिफाई करना है या फाइंड करना है एग्जैक्टली कि हम जहां ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या वह सही प्लेस है कि नहीं। सो दैट इज वन। इट्स नॉट ओनली द UPI पार्ट, इट कुड बी एनीथिंग, इट QR कोड, बेनिफिशियरी डिटेल, बैंक डिटेल, GPay, Google Pay, anything which is comes in this. Okay. So, dear viewers, if you have any query, आप हमें बता सकते हैं। सर, हम एक क्वेश्चन आपसे और लेना चाहेंगे। अगर हम बात करें रिसेंटली लोन्स के बारे में, ऑनलाइन लोन मिलने लगे हैं और पार्ट टाइम जॉब्स के भी ऐसी चीज़ें आती रहती है, हमें मैसेजेस आते रहते हैं, हमें ईमेल्स आते रहते हैं। इनसे बचने के लिए क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? What one have to keep in mind while doing with this? स्पेशली मैं लोन ऐप्स के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो लोन ऐप्स आपको लोन अवेलेबल करा रहे हैं उनके एक तो जो इंटरेस्ट कैप है वो बहुत हाई है, और वो जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहते हैं तो आपसे परमिशन मांगते हैं आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, आपके गैलरी का। तो आप वो परमिशन प्रोवाइड ना करें, क्योंकि वो आपको लोन दे रहे हैं, उसमें आप अपना डिटेल डाल रहे हैं, उनको आपके कॉन्टैक्ट की या आपके वीडियो, आपके गैलरी के एक्सेस करने की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसका अगर वो आपसे ये परमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ फिशी है उनके दिमाग में, और अक्सर लोग उसी में लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उनके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजते हैं कि ये तो अलग अलग उनको बदनाम करते हैं, और उनके लिए फिर मुसीबतें पैदा होती हैं। सेकंड थिंग कि आप जब भी लोन ऐप कोई आपको अप्रोच करता है या आप लोन लेना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये लोन ऐप किस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC से रजिस्टर्ड है। क्या ये किसी बैंक का ऑथराइज ऐप है, किसी NBFC का ऑथराइज ऐप है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के चेक कीजिए और लोन उनसे ही लीजिए। ओके सर, बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने बीच में प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी बताया कि पासवर्ड को बहुत ही अच्छे और सिक्योर तरीके से बनाना चाहिए, तो और उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को सर? देखिए बिल्कुल, पासवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अक्सर हम पासवर्ड को देखें तो अभी रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ न्यूज़ भी सुना कि डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म में भी काफ़ी ऐसे क्रेडेंशियल्स अवेलेबल रहते हैं, और एक लाइन का कंसर्न है कि अगर पासवर्ड आपका हैक भी हो रखा है तो आप चेंज कीजिए, 3-4 महीने में चेंज कीजिए, टाइमलाइन होती है। पासवर्ड में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कीजिए। अगर पासवर्ड आपका शेयर भी हो रहा है तो एटलीस्ट OTP तो आना चाहिए, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। अगर आपको OTP 2 फैक्टर सेट करना है तो आपको मान लीजिए इंस्टाग्राम का सेट करना है तो गूगल करिए हाउ टू सेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम 2FA लिख करके आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। एज वेल इंस्टाग्राम खुद आपको बता देता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप नंबर डालिए, आपको OTP मिलेगा। सिमिलरली व्हाट्सएप को देखते हुए भी हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप देखते हैं QR को स्कैन करते हो, आप अपने ब्राउजर पे भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप जैसी चीज़ें। तो व्हाट्सएप पे भी आप 2 फैक्टर लगाइए ताकि आप ही उसको एक्सेस कर सके, बार बार आपसे वो OTP या आपसे कोड पूछे वेरीफाई करने के लिए। सो पासवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कीप डिफरेंट पासवर्ड एज वेल, डिफरेंट रखिए, हर डोमेन का चेंज करते रहिए, 2 फैक्टर लगाइए, और अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं हैक हो गया है तो आप इमीडिएटली चेंज कीजिए। और गूगल जैसे सर्विसेज में होता है क्या है कि कहीं पे आपने नोटिस किया होगा गूगल पे कि आप उसमें चेक कीजिए कौन से सर्विसेज से लिंक है, आप उसको रिवोक कर सकते हैं गूगल पे चेक करके। दैट इज द फंडामेंटल थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू पासवर्ड्स। These are very small and basic things that you have to keep in mind here. और dear learners, अभी समय सर हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, हम यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो आए, सिंकू सर और दीपक सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी व्यूअर्स को डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर NCERT फॉर कॉलिंग अस।
और डियर लर्नर बहुत ही बेसिक चीज़ें हो जाती है जब फाइनेंशियल क्राइम की बातें आती हैं, तो आपकी जितनी भी प्राइवेट और ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, आप उसे प्राइवेट ही रखें। अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ अपने क्विज के बारे में दैट वी यूज टू कंडक्ट एवरी मंथ। एक क्विज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट यू हैव टू गो टू गूगल, देन यू हैव टू राइट CIET, आपको CIET टाइप करना है, या फिर आप CIET की वेबसाइट पर जा सकते हैं। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप इस बार में आएंगे, यहाँ पे इवेंट्स का एक सेक्शन है, आपको वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है। आपके सामने एक पेज आएगा और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वर्चुअल वर्कशॉप का ऐसा आपको दिखाई देगा पेज। दिस इज आवर इंटरफेस। आपको यहाँ पर करंट एक्टिविटी में साइबर जागरूकता दिवस सीरीज पे क्लिक करना है और आपके सामने एक और पेज आएगा जो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये इधर इस पेज पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी जो आपको इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस सीरीज़ के और क्विज के, और हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्राम स्केड्यूल आपको नज़र आ रहा है, जो भी वीडियोस आपको अभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं लिंक, आप इन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। हमारे प्रीवियस सेशंस हैं इसी सीरीज़ पे जो हुए हैं साइबर जागरूकता दिवस पर, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं और इन सभी वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्विज यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट। आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, आप उस लिंक पे जाएंगे या फिर आपको एक QR कोड नज़र आ रहा है, आपको उसे स्कैन करना है। इन दोनों तरीक़ों से आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो फॉर्म भर सकते हैं या ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको डिटेल्स नज़र आ रही है हमारे लाइव ट्रेनिंग सेशंस की, जो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो है NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको हेल्प करेंगे सारे वीडियोस इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपको यहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म भी नज़र आ रहा है जिसमें आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। और पोस्ट सेशन क्विज लिंक भी नज़र आ रहा है, आप इसको भी क्लिक करेंगे और जितनी भी डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है, यू हैव टू फॉलो दो प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्विज, यू हैव टू राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे cybersafety@ciit.nic.in पर। ईदर यू कैन कॉल अस ऑन आर टेलीफोन नंबर दैट इज़ 8800040559। ये बहुत ही अच्छे मीडियम्स हैं हमसे जुड़ने के लिए। वी आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन इन ह्यूज नंबर्स। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप हमसे जुड़े और इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट सेशन जो हमारा है वो है सहयोग सेशन, जिसमें हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पे बात करते हैं। छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।